अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू एन अदर क्लास, चैप्टर नंबर 2, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। We are going to study today Test Yourself 2.3 isotopes, out of which we will study isotopes of hydrogen, which is on page number 38 of your textbook. Starting from Test Yourself 2.3, the first question is, what is the maximum number of electrons that can be accommodated in a p subshell? तो p subshell में maximum electrons कितने हो सकते हैं? So these are 6 in numbers. How many subshells are there in second shell? चूंकि second shell है, so it means it will have 2 subshells S and P. Why does an electron first fill 2p orbital and then 3s orbital? तो हमें मालूम है कि अकॉर्डिंग टू द रूल लोअर एनर्जी लेवल्स आर फिल्ड फर्स्ट देन हायर एनर्जी लेवल्स। चूंकि सेकेंड p ऑर्बिटल कम्स अर्लियर देन 3s, कि 2p ऑर्बिटल 3s से पहले आता है, इसीलिए 2p ऑर्बिटल की एनर्जी कम है तो उसको पहले फिल किया जाएगा देन टू द 3s ऑर्बिटल. So electrons are accommodated in different shells according to increasing energy. An electron first fills 2p orbital and then 3s orbital because 2p orbital is lower in energy than 3s orbital. If both k and l shells of an atom are completely filled, how many total number of electrons are present in them? कहते हैं अगर k and l shell completely filled हैं तो total electrons कितने हुए? As we know, the maximum number of electrons k can have is 2 and maximum number of electrons L shell can have is 8. So by adding them we get total of 10 electrons. How many electrons can be accommodated in M shell? So M shell में maximum number of electrons are 18 और ये हमें कैसे मालूम हुआ? By 2n square formula. What is the electronic configuration of a hydrogen atom? क्योंकि hydrogen is the first member और इसके पास just एक ही electron है, so its electronic configuration will be 1s1. What is the atomic number of phosphorus? Write down its electronic configuration. So phosphorus atomic number 15. Its electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. If an element has atomic number 13 and atomic mass 27, how many electrons are there in each atom of the element? तो हमें मालूम है कि atomic number means the number of protons, which is equal to the number of electrons. So इसका मतलब अगर इस एलिमेंट का atomic number 13 है तो इसमें electrons भी कितने होंगे? 13. How many electrons will be in M shell of an atom having atomic number 15? कहते हैं कि एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 15 है तो M शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? सो लेट्स डिस्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रॉन्स. फॉर K we know we will give the first 2 electrons to K. The electron number 3 to 10 will go in the L, total of 8. So 8 plus 2 means 10. So M will have 5 electrons. What is the maximum capacity of a shell? कहते हैं किसी भी शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी हम उसके फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे, विच इज 2n स्क्वायर फॉर्मूला. नेक्स्ट इज आवर टॉपिक अबाउट आइसोटॉप्स. उसके तरफ जाने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी, वी आर गोइंग टू रिवाइज दैट, विच इज एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास. एटॉमिक नंबर विच इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम, and atomic mass which is the number of protons and neutrons present in an atom. हर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो है वो फिक्स्ड होता है, उसके अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं वो कभी भी चेंज नहीं होते. हर एक एलिमेंट का अपने प्रॉपर एटॉमिक नंबर होता है. तो जब कभी भी हम केमिकल सिंबल लिखते हैं तो उसके बॉटम लेफ्ट में हमेशा एटॉमिक नंबर होगा और उसके टॉप लेफ्ट पे हमेशा एटॉमिक मास होगा. यानी कि अगर आपको कोई केमिकल सिंबल दिया जाए तो आपको देखकर ये आइडिया हो जाना चाहिए कि दोनों में से कौन सा एटॉमिक मास है और कौन सा एटॉमिक नंबर. फॉर एग्जांपल कार्बन 12 6, सो इट मींस जो इसका कार्बन एटॉमिक सिंबल 6 एटॉमिक नंबर एंड 12 एटॉमिक मास. एटॉमिक नंबर 6 है तो मतलब प्रोटॉन्स भी 6 होंगे. इसी तरीके से क्लोरीन 1735, 17 मीन्स इट्स एटॉमिक नंबर एंड 35 मीन इट्स एटॉमिक मास. लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन्स का नंबर अलग अलग होने की वजह से उनके अंदर उनका जो एटॉमिक मास है वो बदल जाता है.
जैसे क्लोरीन के केस में इन क्लोरीन 35 we have 18 न्यूट्रॉन्स, जबकि इन क्लोरीन 37 we have 20 न्यूट्रॉन्स, जबकि दोनों में जो प्रोटॉन नंबर है वो सेम है 17। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम कहते हैं आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स इट मीन्स द एलिमेंट्स एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट जिनका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो बिल्कुल सेम है, दोनों में 17 प्रोटॉन्स हैं, लेकिन इनका न्यूट्रॉन नंबर अलग अलग है। दोनों में एक में 18 न्यूट्रॉन्स हैं और एक में 20 न्यूट्रॉन्स है। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या कहेंगे? आइसोटॉप्स। और इनका न्यूट्रॉन नंबर चेंज होने की वजह से इनका मास नंबर भी बदल जाएगा। तो अगर हम इसको न्यू टर्म्स में डेफिनेशन को देखें, सो इट विल बी दैट हैव द सेम नंबर ऑफ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। इसी तरीके से कार्बन के टोटल 3 आइसोटॉप्स हैं, जिनके अंदर तीनों के प्रोटॉन्स तो सेम है लेकिन न्यूट्रॉन्स अलग अलग है। एक में 6 न्यूट्रॉन्स है कार्बन 12, एक में 7 न्यूट्रॉन्स है कार्बन 13 और एक में 8 न्यूट्रॉन्स है कार्बन 14। सो दीज आर आइसोटॉप्स ऑफ ईच अदर। So what are isotopes? The atoms of an element that have same atomic number, जिनका atomic number same है। Atomic number यानी के number of protons जिनके same होंगे, but they have different number of mass number, they have different mass number। mass number यानी के उसमें proton number तो same होगा लेकिन change क्या आएगा? only number of neutrons में। एलिमेंट देखने में एक जैसे होंगे लेकिन सिर्फ उनका न्यूट्रॉन नंबर एक दूसरे से अलग अलग होगा। ऐसे एलिमेंट्स जो हम आइसोटॉप्स की जब हम बात करेंगे तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सारे आइसोटॉप्स के लिए एक ही होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर पे। इसी तरीके से आइसोटॉप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज यानी उन सारे एलिमेंट्स की आपस में जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी बिल्कुल एक जैसी होंगी। क्यों? क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं किस पर? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर। लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो आइसोटॉप्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज है, वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगी क्योंकि उनका मास नंबर डिफरेंट है। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। What is isotopes and how isotopes resemble and differ from each other? So isotopes of hydrogen. हाइड्रोजन इसके पास जस्ट एक ही इलेक्ट्रॉन है यानी कि एक ही प्रोटॉन है। सारे हाइड्रोजन्स में प्रोटॉन नंबर सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, लेकिन इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मास नंबर अलग अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन 1 1, हाइड्रोजन 2 1 एंड हाइड्रोजन 3 1। इन तीनों में यू कैन सी द नंबर 1 इज सेम। इट मीन्स दिस इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो कि तीनों में सेम है। वी हैव डिफरेंट मास नंबर, और इस मास नंबर में से डिफरेंट क्या है? न्यूट्रॉन्स नंबर। इन तीनों में न्यूट्रॉन जो है वो अलग अलग है। तो इन तीनों में सेम सिमिलैरिटी क्या है? नंबर 1 सिमिलैरिटी, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी 1s1, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड करती है ऑन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शन करने का तरीका इन तीनों का एक जैसा होगा, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तीनों की अलग अलग होगी, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं मास नंबर पे, और मास नंबर तो तीनों में अलग अलग है। So here you can see the first one is protium H11, which have only one proton and one electron, और इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं है। The second one deuterium H21, इसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही प्रोटॉन है, but now we have one neutron here. And third one is tritium H31, here we have one electron and one proton, लेकिन हमारे पास अब यहाँ पर न्यूट्रॉन there are 2 in number. So for today we learned about Test Yourself 2.3, जो कि आप अपनी नोटबुक पर लिखेंगे, आइसोटॉप एंड आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन, जो कि आप कंप्लीट याद करेंगे।
So that is all for today. Thank you and Allah Hafiz.